Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram. How to prepare for SLAT 2021. We are going to discuss about the Symbiosis Law Entrance Exam. So SLAT is Symbiosis Law Admission Test. It is conducted by Symbiosis Law School for their 5-year law courses BA LLB and BBA LLB. In this video, we are going to discuss about the important dates. So yes, the application is open for 2021. If you want to give the exam this year 2021 में आप exam देना चाहते हो तो application is open है. मैं आपको important dates के बारे में बताऊंगी. New pattern, there is a change in the pattern. We are going to discuss about that. Important topic, the books that you should study for preparing for this exam. We are going to also talk about certain tips and strategies that you should apply while preparing for SLAT in particular. So let's get into this video. Important dates देख लेते हैं. So online registration start हो चुकी है 22 जनवरी 2021 से. Online registration आपकी close हो जाएगी 10th May 2021 को और registration fee payment closes on 10th May 2021. So 10th May 2021 is the last date. ठीक है ना. और जो आपका एग्जाम की एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं करी है तो जल्दी आ जाएगी. एंट्रेंस टाइम जो होगा वो होगा 9:30 AM to 12 noon. ठीक है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, कैंडिडेट्स who have cleared their 12th class examination from any national or state board of education are eligible to apply for SLAT 2021. देखिए, students appearing for their 12th class examination are also eligible. However, they will need to provide proof of qualification at the time of the final admission. तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि दी हमारे अभी 12th क्लास के एग्जाम्स 2021 में होंगे तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? यस, आप एग्जाम दे सकते हैं, आप एलिजिबल है, राइट. अब आपको परसेंटेज कितनी चाहिए? कैंडिडेट्स मस्ट हैव एक्वायर्ड अ मिनिमम ऑफ 45% इन देयर एग्जाम एंड इफ यू बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी देन 40%. Okay, colleges that accept the score of SLAT and number of seats. So they have their campus in Pune, that is Symbiosis Law School Pune. BBA and BA LLB 180-120 seats हैं, right. Symbiosis Law School नोएडा के अंदर भी है. BBA and BA LLB दोनों courses हैं वहाँ पे. 180-120 seats. Symbiosis Law School हैदराबाद BBA BA LLB 120-120 seats है. Symbiosis Law School नागपुर के अंदर BA LLB BBA LLB 120-120 seats है. Total 1080 seats है. Okay, the registration fee for SLAT is 1950, which is non-refundable. Along with the registration fee, you will also need to pay the program registration fee for each program. The registration fee for programs is ₹1000. Okay, fine. Let's check out कि इनके टेस्ट सेंटर्स मतलब टेस्ट कौन कौन से सिटी में कंडक्ट किए जाएंगे. You can pause the video and check for yourself. Okay. टेस्ट पैटर्न. सो मोड ऑफ द एग्जाम इज ऑनलाइन, मतलब आप कंप्यूटर्स के थ्रू ये एग्जाम दोगे. सेंटर पे जाके कंप्यूटर के सामने बैठकर आपको ये एग्जाम देना है. पेन एंड पेपर एग्जाम नहीं है. टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, MCQ टाइप्स. ठीक है. टाइम ड्यूरेशन आपका 75 मिनट्स है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये डिक्रीज हो गए हैं. पहले ये 150 हुआ करते थे, अब ये 75 है. मैक्सिमम मार्क्स 75 एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. प्लीज नोट दैट इन दिस एग्जाम इन SLAT देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. ओके. सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, सबसे पहले आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. SLAT का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा. उसके बाद बेस्ड ऑन योर एंट्रेंस टेस्ट स्कोर यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर PI मतलब पर्सनल इंटरव्यू. WAT दैट इज रिटन टेस्ट जो होता है, राइटिंग के लिए आपको लिखना होता है. उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है. पर्सनल इंटरव्यू के रिलेटेड भी मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो करा हुआ है, प्लीज उसको देख लेना. ठीक है. राइटिंग के लिए भी मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो करी हुई है, वो भी आप चेक कर लेना, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगी. राइट नाउ प्लीज चेक द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन एंड डेट्स ऑफ PI WAT. ठीक है ना. तो रिस्पेक्टिव मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट, पुणे हैदराबाद नागपुर अलग अलग कॉल करते हैं आपको, तो उनकी वेबसाइट आपको चेक करनी होती है. उनका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग है. एंट्रेंस टेस्ट होता है. ठीक है. उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट के बाद कुछ स्टूडेंट्स चूज किए जाते हैं, उनका पर्सनल इंटरव्यू और राइटिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाता है एंड फिर फाइनली जो लिस्ट निकलती है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग आपकी एडमिशन होती है. राइट
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस, लीगल रीजनिंग के 15, एनालिटिकल रीजनिंग के 15, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 15, जनरल नॉलेज के 15, टोटल 75 क्वेश्चंस। फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फी स्ट्रक्चर रिवाइज भी होता रहता है, बट जो इनका फी स्ट्रक्चर मुझे मिला वो ये है, 1,72,500 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और 1,72,500 सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। इंस्टीट्यूट डिपॉजिट आपका 10,000 रहता है। ओके मैंने फीस मेंशन करी है सो दैट आपको आइडिया रहे कि इस इंस्टीट्यूट की इतनी फीस है। ओके रिजर्वेशन देख लेते हैं। देखिए, इफ यू वांट टू चेक द रिजर्वेशन यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक फॉर योरसेल्फ। How to prepare for SLAT 2021? I know कि हमारे पास सिर्फ 3 months ही है या 3 to 4 months है जिसके अंदर most of you have your board exams. But I want to tell you that SLAT एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप इसके लिए particularly मतलब इसके जो particular topics मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, if you prepare those topics, there are chances that you will clear the exam and you can get admission in one of the institutes of Symbiosis. राइट तो इसका जो डिग्री है, क्योंकि ये लोग पर्सनल इंटरव्यू भी लेते हैं और रिटन टेस्ट भी लेते हैं, मतलब आपको ऐसे लिखना होता है एक टॉपिक पर, तो ये अपना जो एंट्रेंस टेस्ट का लेवल है, जो डिग्री है, वो थोड़ी ईजियर रहती है एज कम्पेयर टू क्लैट। राइट तो अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ऑलरेडी एंड आप इसके पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर कर लेते हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं टू गेट एडमिशन इन स्लैट। आई एम नॉट सेइंग कि स्लैट बहुत इजी है, बट अगर आप इनके पर्टिकुलर टॉपिक थोड़े से टाइम में कवर करने इजी है, अगर आप वो कर लेते हो तो आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। राइट एंड पर्सनल इंटरव्यू और राइटिंग टेस्ट के लिए भी अगर आप पर्टिकुलरली प्रिपेयर करते हो और एम करते हो स्लैट के लिए, तो आप स्लैट का जो एंट्रेंस टेस्ट है और जो आपका पर्सनल इंटरव्यू और रिटन टेस्ट है वो क्लियर कर सकते हो। राइट स्टार्ट करते हैं लीगल रीजनिंग से, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स इक्वल वेटेज के हैं, मतलब 15 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में से, हर सेक्शन में से आएंगे, तो कोई भी सेक्शन इम्पॉर्टेंट या लेस इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है। लीगल रीजनिंग के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट रहती है आपकी, तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर दीजिए। राइट जो बुक मैं सजेस्ट करूंगी वो मैं आपको कहूंगी कि आप यूनिवर्सल्स बाय कर लीजिए। यूनिवर्सल्स एक अच्छी बुक है और उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी दी हुई है और स्लैट के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। जब आप यूनिवर्सल्स की बुक पढ़ेंगे तो आपने वहाँ पे जो थ्योरी दी हुई है वो भी पढ़नी है, प्लस एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज सारे के सारे अराउंड 400 एमसीक्यूज आपके प्रोवाइड करे गए हैं यूनिवर्सल्स की बुक में, आपको वो सारे सॉल्व करने हैं और बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अकेली थ्योरी पढ़कर नहीं जानी है, हमें एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। उसके बाद आ जाता है क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए इसके लिए द बुक दैट आई विल सजेस्ट, आप यूनिवर्सल्स में से भी कवर कर सकते हैं, यूनिवर्सल्स के अंदर ये टॉपिक कवर किए हुए हैं, बट अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है और आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आप एपी भारद्वाज या विलीज में से भी अपने ये टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट या फिर आप यूनिवर्सल्स में से भी कवर कर सकते हैं। और एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको लीगल रीजनिंग, लीगल प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करके जानी है। उनकी डिग्री, इस एग्जाम में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो आपके क्लैट में आते हैं, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको लीगल रीजनिंग मतलब प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो करी हुई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे सॉल्व करना है, तो आप उसमें वो देख सकते हैं। एंड आपको अगेन यूनिवर्सल्स में बड़े क्वेश्चंस प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के मिल जाएंगे। तो बेसिकली अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आपने यूनिवर्सल्स की बुक उठानी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारे तीनों टॉपिक्स उसमें से पढ़ने हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। राइट अगर आपके पास टाइम है, मतलब जैसे आपने बोर्ड के एग्जाम्स नहीं देने, मे बी आप ड्रॉपर हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप एपी भारद्वाज या विलीज में से अपना लीगल रीजनिंग के जो टॉपिक्स जो पर्टिकुलर मैंने बात करी है वो आप सॉल्व कर सकते हो। एपी भारद्वाज की बुक में रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो करे हुए है कि आपने कैसे टॉपिक्स कवर करने हैं, नहीं तो आप विलीज के लिए जा सकते हैं। दोनों बुक्स के लिंक जो होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। टाइम कम है तो यूनिवर्सल्स में से ही सारे टॉपिक्स कर दोगे, टाइम है ज़्यादा, आप सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स नहीं है, तो आप एपी भारद्वाज या विलीज खरीद सकते हो।
राइट। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं बात कर रही थी, आपको आते हैं फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और लीगल जीके, मतलब आपको याद भी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। वो पूछ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से ईयर में आया था, क्रिमिनल लॉ की जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स भी आपको कवर करके जाने हैं, राइट। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स कवर करने का बेस्ट वे यही है कि आज से ही हर रोज 15 टर्म्स उठाओ, उनको स्टडी करो, उनकी बैकग्राउंड स्टडी करो। हमें लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स क्यों नहीं समझ में आते, क्योंकि वो बहुत ही एक लाइन में बताया होता है कि ये है। हम क्या करेंगे, ऑनलाइन जाके उसके बारे में और ढूंढेंगे, उनको समझेंगे सो दैट हम उनको याद कर सके। ओके। अब असर्शन एंड रीजन टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। अगेन आपको ये वाले टाइप के क्वेश्चंस यूनिवर्सल्स में मिल जाएंगे, तो आप उसमें से ये प्रैक्टिस करेंगे। ओके। करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। देखिए लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो मैंने टॉपिक्स अंडरलाइन किए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हमने सबसे पहले कवर करने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका आता है सर्कुलर अरेंजमेंट्स, सिलेक्शन बेस्ड पजल, अल्फाबेटिकल सीरीज, एनोलॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ठीक है ना। अब जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग है, जो बहुत ही न्यू है, बच्चे न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग में एक तो आपके पजल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, और एक आपके होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। तो जो पजल टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम बुक यूज करते हैं। जो बुक मैं रेफर आपको करूंगी वो है RS अग्रवाल। क्या नाम है? RS अग्रवाल, ठीक है ना। ये बुक आप यूज करेंगे। अब इस बुक में से कैसे स्टडी करना है, हाउ टू स्टडी फ्रॉम दिस बुक, आई हैव अगेन डन अ डिटेल्ड वीडियो दैट हाउ यू नीड टू स्टडी फ्रॉम दिस बुक। वो वीडियो देखो, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा कि कैसे करना है। बट आपने सबसे पहले बुक खरीदते क्या करना है, ये वाले जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वो मार्क कर लेने हैं RS अग्रवाल की बुक में से। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल बहुत ही फेमस बुक है। उसमें से हमने पजल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लेने हैं, और जो हमारे ये वाले टाइप के क्वेश्चंस है क्रिटिकल रीजनिंग, वो हम किस में से कवर करेंगे, वो हम करेंगे MK पांडे में से। अब आप RS अग्रवाल की बुक खरीदोगे तो उसमें ये वाले टॉपिक्स होंगे आपके, ठीक है, बट हमने MK पांडे में से ही ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं, राइट। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, MK पांडे में आपके जो पजल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड बहुत अच्छे ट्रिक्स एंड टिप्स दिए हुए हैं, तो वो आप पढ़ लेंगे MK पांडे में से। बट आप क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करोगे, सर्कुलर अरेंजमेंट्स, अल्फाबेट सीरीज के RS अग्रवाल में से ही। तो बार रिपीट कर रही हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग हम पढ़ेंगे भी और सॉल्व MK पांडे में से करेंगे, बट जो ये वाले टाइप के क्वेश्चन है इनके टिप्स एंड ट्रिक्स MK पांडे में बहुत अच्छे दिए हुए हैं, तो हम उसमें से वो टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ेंगे। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, स्पेशली पजल टाइप के क्वेश्चंस, आपने अपने जो ट्रिक्स आपको मिलते रहते हैं, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको बड़े ही ट्रिक्स खुद ब खुद पता चलेंगे, तो वो आप नोट कर लोगे, ठीक है ना। नंबर 1 नोट करोगे, नंबर 2 जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस हैं या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप मार्क कर लोगे, सो दैट जब आपको रिवाइज करना है तो आप क्या करोगे, आप ये ट्रिक्स रिवाइज कर लोगे और रॉन्ग और डिफिकल्ट क्वेश्चंस रिवाइज कर लोगे, उससे आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। एंड जब आप पजल टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका एम क्या रहेगा कि हमें स्पीड, हमें जल्दी जल्दी और करेक्ट एक्यूरेट आंसर चाहिए, ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है और सही। जब आप RS अग्रवाल प्रैक्टिस करोगे, उसमें इतने अच्छे क्वेश्चंस अच्छे से दिए हुए हैं और बहुत सारे टाइप्स कवर किए हुए हैं, तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी और आप देखोगे कि आप करेक्ट भी सॉल्व कर पा रहे हो, राइट। बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की। बहुत बच्चे इन टॉपिक से डरते हैं, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, MK पांडे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये टॉपिक्स न्यू टॉपिक्स हैं, हमने कभी भी नहीं पढ़े हैं, तो हमें इनसे डर लगता है, पर डरने वाली कोई बात नहीं है। MK पांडे में से अच्छे से कवर करो, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन स्लैट के एग्जाम में आते हैं, राइट। और जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए हैं वो पहले सॉल्व कर लो, मार्क कर लेना। RS अग्रवाल की बुक में और MK पांडे में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट पर्टिकुलरली हमने यही टॉपिक सॉल्व करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, ओके। बात करते हैं मैथ्स की। देखिए मैथ्स का कोई भी सेपरेट सेक्शन नहीं है, बट ये बीच बीच में
सेक्शंस में इंक्लूड किया होता है। एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में इसको इंक्लूड कर दिया जाता है। मेरे ख्याल से एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन में आता है, ठीक है ना। तो सेपरेट सेक्शन नहीं है, बट आप टॉपिक्स कवर करके जाओगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके हैं वो हैं प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद एज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, सर्कल्स। अब देखिए, इसके लिए जो बुक मैं रेकमेंड करती हूँ वो है 18 डेज वंडर्स बाय एस चंद, बिकॉज ये बहुत ही शॉर्ट के अंदर है। तो आप ये बुक में से ये वाले टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्टिकुलरली ये वाले टॉपिक सॉल्व कर लीजिए उस बुक में से। बट अगर आपको न्यू बुक बाय करनी है तो आप 18 डेज वंडर बाय एस चंद बाय कर लीजिए। एंड इसमें से भी फॉर्मूला की लिस्ट क्रिएट करिए, फॉर्मूला की लिस्ट, ठीक है ना, जो लिस्ट आप बार बार रिवाइज करते रहो, ठीक है ना। एंड वही डिफिकल्ट क्वेश्चंस और रॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो मार्क कर लीजिए, सो दैट जब भी आपने रिवाइज करना है फॉर्मूला लिस्ट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस रिवाइज किए और आपका टॉपिक हो गया, राइट। बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश के अंदर आपको आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो करी हुई है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए आपने वो वीडियो देखनी है और अपना इंग्लिश का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लेना है। आपने कोई भी अच्छी सी बुक लेनी है जिसमें से आपने प्रैक्टिस करने हैं आरसीज, राइट। आप अरुण शर्मा की बुक, नो डाउट वो एमबीए के लिए है, कैट के एग्जाम के लिए है, बट फिर भी अगर आप उस बुक में से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें से, नहीं तो कोई भी आप ग्रामर की बुक जो लेते हैं उसके चैप्टर होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, आप उसमें से भी सॉल्व कर लेंगे। तो आप स्लैट के जो इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो वो आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। बट अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट लगते हैं तो आप ऐसी बुक खरीदिए जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। जैसे मैंने उस वीडियो में जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने चाहिए ये बताया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखनी है आपने, ओके। बात करते हैं जनरल नॉलेज की। देखिए, जनरल नॉलेज के अंदर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल न्यूज़, फेमस पर्सनालिटीज, गवर्नमेंट न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, ये पूछते हैं कि हमें कब की न्यूज़ कवर करनी है। देखिए, अगर आप स्लैट 2021 दे रहे हैं तो आपने जनवरी 2020 से लेकर के जब तक एग्जाम, जिस मंथ में एग्जाम है वहाँ तक की न्यूज़ पढ़नी है। मान लीजिए जून के अंदर एग्जाम है तो जून 2021 तक की न्यूज़ कवर करनी है। अब कैसे कवर करोगे? आप एनुअल एडिशंस बाय कर सकते हो किसी भी करंट अफेयर्स मैगजीन की। तो करंट अफेयर मैगजीन्स आते हैं, ठीक है ना, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, न्यूज़ एंड इवेंट्स, राइट। ऐसी मैगजीन या टिट्स बेट्स की आप एनुअल एडिशन बाय कर लोगे। अब एनुअल एडिशन में क्या होता है, पूरी 2020 की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कवर करी हुई होती है, राइट। तो आपकी जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 की न्यूज़ तो यहाँ पे कवर हो जाएगी, बट बाकी सारे मंथ के लिए आपको मंथली एडिशंस पढ़ने पड़ेंगे, राइट। तो आप वो मंथली एडिशंस में से कर सकते हैं। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो आप टिट्स बिट्स का एनुअल एडिशन प्लस मंथली एडिशन बाय कर लीजिए, उसमें से आपकी बहुत करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। स्लैट के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स कवर करनी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज जो राइटिंग टेस्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही टॉपिक आता है। एंड मोर ओवर, जब आपकी पर्सनल इंटरव्यू होती है तब भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई करंट अफेयर का टॉपिक टच किया जाता है। तो करंट अफेयर्स इस एग्जाम में इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए इस वाले पार्ट को इग्नोर मत करना, क्योंकि आपका राइटिंग का जो एसे जो आपको लिखना है वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स रिलेटेड ही आएगा। तो इसलिए बेटर है कि प्रतियोगिता दर्पण या टिट्स बिट्स जैसी मैगजीन ले लें और अभी से मंथली एडिशन पढ़ना स्टार्ट कर दे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, ओके। करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके इस एग्जाम में आती है तो ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस एंड हिस्ट्री। अब देखिए, मैं आपको कहूँगी कि यूनिवर्सल्स की बुक तो हम खरीद ही रहे हैं इस एग्जाम के लिए। यूनिवर्सल्स की बुक में से आप ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री के एमसीक्यूज दिए होते हैं, वो एमसीक्यूज सॉल्व कर लीजिए एंड उनको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, तो आपकी स्टैटिक जीके बहुत ईजिली कवर हो जाएगी, ओके। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं
कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।